currently we have more than 650 service centers in pan India, which covers 500 plus cities. Screen guard and back cover, if it is available, then it's free for our customers. ये सेवा भाव वाली जो चीज है ना, going beyond just repairing the handset Right, is a Geetash. very big deal. So the concept is, whenever customer come into the service center, we should provide each and every solution whatever customer want. मेरे को एक ही प्राइस मिलेगा, Yes. चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो एक यूएसबी पोर्ट ही क्यों ना हो. Yes, the price is also same, and we try to give same experiences to our customer. Hello everyone and welcome to another episode of Vivo Leadership Speaks. Today we are going to delve deeper into not only the experience of buying a phone, but about owning a phone. It is about total experience of ownership. And I have with me today someone who makes it possible, somebody who really takes care of your service center needs. I have Praveen Banswal, who leads service centers for us. Hi Praveen. Namaskar, and thanks Geetach for inviting me here. So Praveen, वहाँ से ही शुरू करते हैं कि what do I first see when I go and enter a Vivo service center? So Geetach, basically for us in Vivo, our prime focus is not only providing repairing from our service center. So हमारा ऐसा नहीं है कि हम जस्ट रिपेयरिंग करने के लिए ही हमने सर्विस सेंटर खोलना. सर्विस सेंटर तो रिपेयर के लिए होते हैं. That's why I'm telling you, अगर आप सिर्फ सर्विस देना चाहते हैं, सर्विस एंड सर्विसेज, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू. द सर्विस विच वट एवर वी आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम आवर सेंटर, दैट इज कॉल्ड सर्विस. कि फॉर कस्टमर आया, रिपेयर किया, देन दे गो बैक आफ्टर रिपेयरिंग द हैंडसेट. बट फॉर अस एज वीवो, आवर मेन फोकस इज ऑन कस्टमर problem and how we can provide solution to customer problem. If it is related to mobile, surely we should repair the handset. If it is really related to other than mobile, then it's our responsibility to provide a solution to our customer. So the concept is, whenever customer come into the service center, we should provide each and every solution whatever customer want. But यहाँ तक पहुँचने में तो काफी वक्त लगा होगा, है ना? Surely, Geeta, this is a journey, and still journey is going on. So when I joined, that time we had third-party service centers, and you know the third-party service centers, they are purely focused on how they can get more benefits from customer. But as Vivo, our primary motive is to provide solution, the customer experience and the customer satisfaction. So that's why we shifted all the third-party service center into company managed service center. So currently we have more than 650 service centers in pan India, which covers 500 plus cities actually, and all are exclusively for Vivo and iQOO service center. अब हमारे करीब 650 सर्विस सेंटर्स हैं, बट ये 650 पहुंचने की जर्नी में, जैसे आपने कहा ये जर्नी है, 10 साल की जर्नी है ये. इसके अंदर अगर आपका क्या ऐसा पॉइंट था कि जब आपको ऐसा लगा कि यार ये हो गया ना, तो बस सब सॉर्टेड है फिर तो? Like Geetach, in the beginning, and I have more than 20 years experience actually. So in my past journey, मैंने देखा कि every brand is more focused on how to get money from customers. So यहाँ पर the focus is purely customer experience. So the journey जब हमने start किया Vivo का, then हम each and every touch points पे हमारा फोकस रहा. First thing comes in the customer mind, हम कहाँ रीच करें, right? So how we can give a better experience. तो कैसे पता चलेगा मुझे, वैसे अगर मैं कस्टमर हूँ, मेरे को अपना फोन सर्विस कराना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कि वीवो का सर्विस सेंटर कहाँ है? Okay, so Geetach, the first thing is, जब भी किसी कस्टमर का फोन खराब होता है तो everyone is looking the service center or the support किधर करते हैं? Google. So our first touch point is Google. So Google पे in the beginning आपको पता है कि कितने लोग थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स हैं. They just mention Vivo सर्विस सेंटर, right? So कस्टमर वहाँ चले जाते थे, then उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता था. तो हमने इनिशिएटिव लेकर वी कनेक्ट ऑल द लोकेशंस
सो अगर आपको कोई भी सर्विस सेंटर सर्च करना है, यू जस्ट टाइप on Google the Vivo and iQOO authorized service centers. So you can have all the list. The another way you can find the service center, our official website is having in the support section we have that tab where you can find the customer our service center address. And the third one is our Vivo application. अगर आपने देखा होगा then we have a support tab. In support tab there is multiple options. उसके अंदर इस प्राइस आप देख सकते हैं, अगर आपको चेक करना है कि आपके फोन का डिस्प्ले का प्राइस क्या है या किसी और अच्छा वो ऐप में ही चेक कर सकते yes, हैं? ऑफ कोर्स अरे वाह। ऐप में भी चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। प्राइस पूरे ऑरोविल इंडिया सेम ही है? यस, तभी मैंने आपको बोला कि होता क्या है कि अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर देंगे तो कोई अपना मार्जिन कुछ रखेगा, कोई अपना कुछ मार्जिन रखेगा। तो वट एवर स्टैंडर्ड वी क्रिएट फॉर आवर कस्टमर्स सर्विस सेंटर इज सेम फॉर पैन इंडिया। बहुत ही सही, अगर बहुत ही सही। मतलब मैं कहीं पे भी हूँ, चाहे मैं अगरतला में हूँ और चाहे मैं भोपाल में हूँ, मेरे को एक ही प्राइस मिलेगा। चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो एक यूएसबी पोर्ट ही क्यों ना हो। यस, द प्राइस इज ऑल्सो सेम एंड वी ट्राई टू गिव सेम एक्सपीरियंसेस टू आवर कस्टमर। सो कस्टमर को एक इमेजिन, जब भी वो सर्विस सेंटर के अंदर जाता है किसी भी सर्विस सेंटर में, देन दे कैन हैव वन इमेज ऑफ कस्टमर सर्विस ऑफ वीवो कि हाँ ये वीवो सर्विस सेंटर ही है। सो जितने भी सर्विस सेंटर हैं ऑल आर अपग्रेडेड। सो 3.0 वर्जन वी आर यूजिंग फॉर डिजाइनिंग। क्या है 3.0 वर्जन? क्या करते हैं इसके अंदर? अपग्रेडेड time to time we upgraded our service center environment. Like in the first version we had airport chairs. Airport chairs, benches जैसे होते हैं। Then we upgraded to sofa kind of table. Then now we have purely sofa. हाँ, I saw कि अब तो हमारे सर्विस सेंटर में लाउंजेस ही होते हैं तरीके। It's like a very beautiful sofas that are there. Yes. It's a comfortable environment. Yes. तो मैं फिर वापस वहीं पे जा रहा हूँ। मेरे को सर्विस कराना है फ़ोन, मैंने देखा अपने फ़ोन पे देखा, मैंने वेबसाइट पे देखा और वहाँ से मेरे को पता चला यहाँ पे सर्विस सेंटर है। मैं अपनी सर्विस वहीं से बुक भी करा सकता हूँ? क्या मेरे को सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा उसके लिए? So Gitach, we have pick up and drop services in India, and we have appointment services where you can use your own slot. Okay. कि आपने जो भी slot किया, then you can visit the service center and you can get it done. And we also have a dedicated premium counters in our service center for our premium customer. X series devices के लिए? Yes, the premium. और iQOO की भी? iQOO premium devices. तो उनके लिए हमारे पास dedicated counter भी है. And as you know that we have our own contact center. We are not running any third party contact service center. तो contact center भी हमारा खुद का। अच्छा, मतलब कि जो हमारा कॉल सेंटर है वो भी हमारा in-house ही है ना? In-house contact center है। And in contact center also we are providing a dedicated line for premium customers. So customer को ज़्यादा wait करने नहीं पड़ता। तो customer जैसे ही service center पे enter होता है, they can reach to premium counter if they have a premium device. तो लोगों को ना ये भी बड़ा है कि मैं अगर लोकल के पास जाऊंगा ना तो मेरा सस्ते में काम हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? Yes, Gitach, it's really true कि आप अगर लोकल पे जाएंगे तो वो आपका सस्ते में हो जाएगा। But the thing is quality. तो क्वालिटी आपको वो नहीं मिलेगा। क्वालिटी, जब भी मैं क्वालिटी की बात करता हूँ तो इट्स नॉट कि वो एक चीप क्वालिटी का है, वो हो सकता है अच्छा क्वालिटी, बट क्या वो कंपेटेबल है डिवाइस के साथ? क्या वो बंदा ट्रेंड भी है जो कर रहा है? जो बिकॉज यस ऑफ कोर्स, क्योंकि एक डिवाइस, नाउ वी हैव यूनिबॉडी डिवाइस। यूनिबॉडी डिवाइसेस लाइक कि आपको एक स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए कि उसका बैक कवर रिलीज किया, देन आपने बैटरी रिलीज किया फोन से। सो एक ट्रेंड और एक एक्सपीरियंस एंड वेल इक्विप्ड डिवाइस ही उसको कर सकता है, बट वो कॉस्टली ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर उसको परचेस नहीं कर सकता। सो दिस इज द रीज़न कि हम सजेस्ट करते हैं अपने कस्टमर्स को, प्लीज डोंट गो टू द अनऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, बिकॉज वो क्या पार्ट डाल रहे हैं, वो कंपेटेबल है या नहीं है। अगर वो उन्होंने नॉन कंपेटेबल स्पेयर पार्ट हैंडसेट में लगा दिया, देन इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो चलेगा। करेक्ट। और इट्स नॉट मैंडेटरी, खराब भी हो सकता है, वो और भी चीजें खराब कर सकता है। आप इसको अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं तो 1000 mAh की बैटरी है, उस फोन के अंदर 2000 mAh की बैटरी लगा देगा, क्या होगा? सो कंपेटेबल नहीं होगा, वो पावर सप्लाई ज्यादा। तो ये सब चीजें हैं। अनऑथराइज
चार्जर परचेज कर लेते हैं। आजकल होगा ना भाई, सी टाइप का चार्जर है तो हम कोई भी चार्जर लगाते हैं, तो वो भी एक रीजन होता है फोन का डिवाइस का प्रॉब्लम। और क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए जिससे फोन खराब कम हो उनका? यस, तो गीताज मुझे हम एज पर द टेक्निकल्स टर्म्स, सो सबसे पहले तो कस्टमर को चार्जर, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक होता है मोस्टली कस्टमर्स का, कि वो लोग कोई भी चार्जर यूज कर लेते हैं फॉर चार्जिंग। टाइप सी तो टाइप सी है ना, कोई भी लगा सकते हैं, बट एक्चुअली टाइप सी इज अ केबल आउटपुट। अच्छा, बट जो उसका एक्चुअल आउटपुट पावर है वो हर एक चार्जर का अलग होता है। अच्छा, हर एक डिवाइस का रिक्वायरमेंट अलग होता है। जस्ट लाइक आपको शायद 2 रोटी खाना है, मेरे को 1 रोटी खाना है ना, तो इट्स लाइक सेम कि डिवाइस को जो रिक्वायरमेंट है, हम अगर वो नहीं देंगे तो वो क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस डाउन जाएगा, बिल्कुल, बैटरी बैकअप कम होगा, फोन हीट ज्यादा होगा। सो ये सारी चीजें हैं जो कस्टमर्स को रहना चाहिए। और हमेशा जो भी प्रॉब्लम है, हमारा ऑथराइज सर्विस सेंटर है, हमारा 650 प्लस सर्विस सेंटर्स है, तो मैं कस्टमर्स को ये सजेस्ट करूंगा दे शुड गो देयर। व्हाई? क्योंकि कोई सर्विस चार्जेस तो है नहीं। सर्विस चार्जेस नहीं है? नो गीता, वी फॉर चेकिंग वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। अच्छा, कस्टमर अगर आपको इंस्पेक्शन करवाना है अपने फोन का, देन इट्स फ्री। अच्छा, मतलब मेरे को लग रहा है कि एक बार फोन की चेक करा लेना चाहिए, हम जाते नहीं है सोच के कि अननेसेसरी सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे, तो है ही नहीं कोई चार्जेस नहीं है, एंड सॉफ्टवेयर चार्जेस नहीं है हमारे पास। सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह भी कर देते हैं हम लोग। एंड फॉर स्पेयर पार्ट एंड एक्सेसरीज वी हैव सर्विस डे एक्टिविटीज। अच्छा, हाँ, द सर्विस डे एक्टिविटीज in a month 14, 15 and 16 we ran this activity, and in this activity the customer can avail 10% discount on accessories, and the free labor cost is there if, because अगर कोई spare part change हो रहा है तो there is a minimal labor cost is there, so we waived off on that point. Okay. And the screen guard and back cover, if it is available, then it's free for our customers. Free? Yes, absolutely free. If it is available, then yes, it's absolutely free for our consumer. So जब आपका सर्विस डे होता है, ऐसा कुछ होता है, या मॉनसून वगैरह होते हैं, तो फिर तो रश भी बहुत पड़ता होगा सर्विस सेंटर पे, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं हम? Okay, so Geeta, वेट टाइम्स वगैरह भी लोगों को बड़ी इरिटेशन होती है। Yes, of course. So basically I give this credit to my frontline team जो अभी सर्विस सेंटर पे अवेलेबल है, because they plan this in advance. So कोई भी हम एक्टिविटी रन करते हैं, फॉर एग्जांपल सर्विस डे एक्टिविटी है या मानसून ऑफर है, इन विच कस्टमर कैन अवेल मोर डिस्काउंट इफ कस्टमर हैंडसेट इज लिक्विड डैमेज्ड. सो वी प्लान इन एडवांस एंड वी कीप more service center staff in our service center so that they can entertain our customers and provide solutions to our customers. कोई आपके पास ऐसा हैक नहीं है, जब बारिश हो रही है तो फोन के साथ क्या करना चाहिए जिससे कि खराब ना हो? So basically Geeta, nowadays you can see the mobile phone is one of our body part, so कोई भी उसको दूर नहीं रहना चाहता, but I suggest rainy season में we should have one zip pouch. There is multiple zip pouches in the market. You can keep your handset in this pouch and keep it safe. Okay, I think वो बिल्कुल मतलब आसान सा और सस्ता सा तरीका है, Simple. कि कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ जिप पाउच में रख के अपनी जेब में रख लो तो फोन आपका सेफ हो जाएगा. So आपको क्या लगता है कि लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं अपने फोन के साथ? कुछ आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात करते हैं ना. आपने 10 साल से वीवो में काम कर रहे हो, तो क्या ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस था जिससे आपको ऐसा लगा यार ये सर्विस का ही मुझे काम पसंद है? इसके पीछे भी मेरा एक स्टोरी है. लाइक माय ब्रदर वाज इन वन ऑफ द कंपनी जहाँ पर मोबाइल रिपेयर सर्विसेज होता था. देन आई सेड कि मुझे भी करना है काम, बिकॉज आई लव गैजेट्स. आपको तो शौक बड़ा था? यस, आई लव गैजेट्स, एंड दैट टाइम आई स्टार्टेड माय करियर इन अ ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर where I worked as a receptionist, front desk executive. अच्छा. So बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है. फ्रंट डेस्क से आप आज हेड ऑफ सर्विस हो. So that moment I decided कि उनको एक लोनर हैंडसेट के अंदर मैंने सिम कार्ड उनका डाला, and then I gave to her, and then उन्होंने अपने हस्बैंड से बात किया. She was very happy. हाँ. अगर उसके बाद उनका फोन ठीक भी नहीं होता तो चलता, बट somehow मैंने उसको क्लीन करवाया, देन आई गिव बैक टू दैट लेडी एंड हैंडसेट रिपेयर हुआ. द टच पॉइंट इज, वो जो छोटा सा बच्चा था उसके हाथ में कुछ
₹10 के नोट्स थे, अच्छा, वो धीरे से इस तरीके से दिया। हाँ, देन आई रियलाइज कि लाइक वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। आज भी मैं जब सोचता हूँ तो रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों का हेल्प हो, और किन लोगों का हेल्प हो, जो एक्चुअल में इसके हकदार हैं। आप और मैं जाके रिपेयर करा सकते हैं आज की डेट में, बट हाउ that kind of lady can get more benefits. So that's why I decided to help others. आई थिंक ये चीज़ ना प्रवीण हमें आपकी पूरी टीम में ही दिखती है और हर सर्विस सेंटर में दिखती है। मैं भी गया हूँ बहुत सर्विस सेंटर्स में। ये सेवा भाव वाली जो चीज़ है ना, गोइंग बियॉन्ड जस्ट रिपेयरिंग द हैंडसेट Right, इज अ Geetesh. वेरी बिग डील। बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ फनी इंसिडेंट्स आल्सो दैट हैपन, राइट? Yes, of course. इमोशनल तो है काफी, आई एम श्योर फनी भी होते होंगे। Yes, I remember एक कस्टमर हमारे पास आए और उनका फ़ोन के अंदर कुछ वायरसेस था उस टाइम पे, तो वो ब्लूटूथ के थ्रू आए थे। सो ही जस्ट आस्क कि वायरस आया कैसे। आई टोल्ड देम कि ये सर ब्लूटूथ के थ्रू आपने बाय मिस्टेकली एक्सेप्ट किया होगा, देन ये आपके फ़ोन में आ गया। ही सेड कि रिमूव इट। क्या वायरस के ब्लूटूथ? ब्लूटूथ। अरे क्या बात कर रहे हो? यस, देन आई गिव देम गाइडेंस कि आप लोगों को ब्लूटूथ ऑफ रखना चाहिए, और अननेसेसरी अगर कोई पॉपअप आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि टुडेज वी कैन चेक मल्टीपल स्कैम्स चल रहे हैं, और लिंक्स वगैरह ओपन नहीं करने चाहिए। व्हाट्सएप पे आप देख रहे हैं कितना लिंक्स आते हैं, तो उनको ओपन नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपने तो ये सारी एवोल्यूशन देखी है, तो जब इतनी एवोल्यूशन इतने फास्ट पेस पे होती है, तो सर्विस कैसे कीप अप करता है इसके ऊपर? कैसे आप अपने लोगों को ट्रेन रखते हैं? सो राइट गीतज की कस्टमर बिहेवियर इज चेंजिंग एवरी टाइम। सो रिक्वायरमेंट भी चेंज होता है, और सर्विस में स्पेशली आप जज नहीं कर सकते, आप ऐसा कोई गाइडेंस नहीं दे सकते कि आप की एक सिंगल स्टैंडर्ड दे दिया और वो यूज़ करके आप सभी कस्टमर्स को आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं या उनकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, बिकॉज सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग है। सो वी हैव मल्टीपल स्टैंडर्ड्स। हमारे पास वी कॉलेज प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपना कंटेंट एक कोर्स आप समझ सकते हैं। एक कोर्स होता है जो हम अपने इंजीनियर, रिसेप्शनिस्ट, अपने बाकी जो मैनेजमेंट स्टाफ है उनके लिए हमने उनको डिज़ाइन किया है स्पेशली। सो बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग उनको लर्निंग किस तरीके का होना चाहिए, हम उनको टाइम टू टाइम वो प्रोवाइड कराते हैं। वी हैव ऑल्सो सर्टिफिकेशन अच्छा कोर्सेज जिसपे हमारे इंजीनियर्स पार्टिसिपेट करते हैं। देन दे आफ्टर सर्टिफिकेशन दे ओनली रिपेयर द तो डिवाइसेस। ये तो सिर्फ ये फंक्शनल ट्रेनिंग हो गई, कुछ बिहेवियरल ट्रेनिंग भी होती है क्या? यस, वंस इन अ मंथ हम अपने सर्विस सेंटर स्टाफ के साथ हम बिहेवियरल और अदर इश्यूज, जो अगर कोई कस्टमर डिसैटिस्फाइड है तो ऑन द बेसिस ऑफ सिनेरियोस हम अपने सर्विस सेंटर स्टाफ को इसका ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। द पॉइंट इज हम जो ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। लेट मी टेल यू कि अगर कोई स्टाफ एक चीज़ डिसैटिस्फैक्शन, लेट सपोज एक डिसैटिस्फैक्शन आया, कस्टमर ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, everyone is focusing he didn't do this। हम जानना चाहते हैं कि why he is not able to do this। so there is difference between these two कि अगर आप सीधा ये कहते हैं कि वो नहीं करा, उसने नहीं करा, आप ब्लेम गेम खेल रहे कि आप उसने नहीं करा, बट our focus is कि why they are not able to do this and how we can resolve this, because मेरा सर्विस स्टाफ भी हमारे लिए कस्टमर है। so it's our responsibility to give more guidance to our service staff so that they can take better care of the happy service engineer or happy service staff only can provide happiness to others। I agree। if अगर आप खुद ही खुश नहीं हो तो आप सामने वाले को खुश नहीं है तो वो कैसे खुश रखेंगे? वो environment create करना है। so that is why our slogan is care with joy। Got it। प्रवीण, एक बात बताइए, एज अ कंज्यूमर मुझे क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि मेरा फ़ोन आसानी से ख़राब ना हो? राइट गीतज, बेसिकली कॉमन मिस्टेक ही करते हैं हम कि जो हैंडसेट के साथ चार्जर आता है हम वो लोग यूज़ नहीं करते। हम कोई भी चार्जर C टाइप है उसको लगा दिया। सो इट्स नॉट लाइक दिस।
जो फ़ोन के साथ चार्जर आता है वो इसीलिए आता है कि वो कंपैटिबल है उस फ़ोन के लिए, आउटपुट उसका उस फ़ोन के लिए बना है। सो सबसे कॉमन मिस्टेक ये है। देन हम लोग क्या करते हैं कि चार्जिंग पे फ़ोन लगाएं एंड देन हम उसको यूज़ कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। हाँ। सो वी शुड ऑल्सो अवॉइड दिस, Okay. राइट। एंड द अनदर थिंग इज हम लोग अनऑथराइज सर्विस सेंटर जहाँ पर डुप्लीकेट पार्ट्स यूज़ होते हैं, उनके पास टूल्स नहीं होते, वो हम वहाँ जाते हैं, वहाँ से सस्ता रिपेयर करते हैं, बट सस्ता रिपेयर हो जाता है लेकिन आप जो क्वालिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। सो आई सजेस्ट शुड नॉट गो। छोटी छोटी चीजें हैं, Yes. बट आई थिंक लोगों को इन सबका बहुत- ध्यान रखना चाहिए। कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक लाइफ बढ़ती है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि आप दांतों के डॉक्टर के लिए फिजिशियन के पास नहीं जा सकते, और Correct. फिजिशियंस अगर आपको कोई फिजिशियन का नीड है तो आप दांतों के डॉक्टर के पास नहीं जाते। आपको करेक्ट चीज ही अप्रोच करना चाहिए। So, how are you really looking at taking this care with joy forward? What are the things that are in store for the future? I know people don't even have patience these days. हमें ही देख लो कि अगर हम किसी सर्विस सेंटर या कहीं भी जाते हैं तो हमें फास्ट चाहिए होता है, बट फ्रॉम आवर साइड वी नीड टू बैलेंस इट, बिकॉज अगर आप फास्ट पे ही फोकस करेंगे देन यू विल कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। सो फ्रॉम आवर सर्विस सेंटर वी आर बैलेंसिंग both the things, then we provide our services to our customers. Thank you so much, Praveen, for sharing these valuable insights with us. Today, we learned how Vivo is totally focused on the consumer, not only when they buy the phone, but after they have bought the phone. It is about total experience of ownership. Thank you so much for joining, and I'll see you soon again in another exciting episode of Vivo Leadership Speaks.